السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا قال تبارک و تعالی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، دیگر تمام محدثین، ائمہ کرام، مشائخ اعظام، اولیاء کرام، مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حقہ ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیرت ابراہیم کے فکری، نظریاتی اور تربیتی پہلو قرآن و سنت کی روشنی میں پہلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سیرت کے فضائل اور خصوصیات آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کے اندر تقریباً 6 قسم کی اہم نظریاتی اور اہم قسم کے نکات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل اور ماڈل کے ہیں۔ دوسری بات اسی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دو ٹوک اعلان برات کہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کفر، شرک، بدعت و خرافات پھیلنے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ
बेजा मसलहत का शिकार होना और कुफर, शिरक, इल्हाद, बिदात और खराफात की नफ़ी ना करना है। जब चीज़ वादे हो जाए कि ये शिरक से है, ये कुफर से है, ये इल्हाद के कबील से है, तो उसके अंदर हम मुसलमानों को बगैर किसी मसलहत के उस चीज़ पर हुक्म लगाना चाहिए। अगरचे मुसलमानों को बुरा भला या जमातों और मसलकों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो शिरक कबूरी है, शिरक इल्हादी है, या इसी तरह कुफर की इस्तिशराकी शक्लें हैं, वो हमें वाज़े तौर पे कहना चाहिए कि ये फ़ेल कुफरिया है, ये फ़ेल शिरकिया है और ये फ़ेल बिदिया है, और उसको दलील की रोशनी में बयान करना चाहिए, जैसा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने इस चीज़ का ऐलान किया। और तीसरी बात यह है, फरमाया कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावा वल बगदा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़िक्री और सीरत के पहलू से जो बुनियादी बात समझ आती है कि ये दोस्ती दुश्मनी का मेयार कोई मुआशरती मेयार नहीं है। दोस्ती दुश्मनी का मेयार ये कोई इलाकाई नहीं है, ये मजहबी बुनियादों पर दोस्ती और दुश्मनी का मेयार होता है। दीन की बुनियाद पर आपके ताल्लुकात बनते हैं, दीन की बुनियाद पर दोस्ती और दीन की बुनियाद पर दुश्मनी होनी चाहिए। हमारे इस वक्त दोस्ती और दुश्मनी का मेयार हमारा बजाते खुद अपनी ज़ात का मसला, अपने मफादात का मसला, अपने बिजनेस और अपनी कौमियत और वतनीयत का मसला, ये दोस्ती और दुश्मनी का मेयार बनाता है। होना ये चाहिए कि दीन की बुनियाद पर, कुरान सुन्नत की बुनियाद पर आपके किसी से कल्बी ताल्लुकात हो। हाँ, सलाम दुआ होने में, ताल्लुकात होने में कोई ऐसा हर्ज मजाका नहीं है, लेकिन आपसे किसी की कल्बी वाबस्तगी, दोस्ती और याराना दोस्ताना, वो सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद पे होता है, दीन के अलावा नहीं है। इसी तरह फरमाया हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीही ला अस्तगफिरन्ना लक। ये बात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमारे यहाँ नमूना नहीं है। गोया कि इससे पता चलता है कि इंसानों में कोई भी इंसान कामिल नहीं है, कामिल ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। कोई भी इंसानी ज़ात चाहे नबुव्वत से मुतल्लका हो, वलायत से मुतल्लका हो, वो कमी कदाई की शिकार हो जाती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जुमला जो अपने काफिर बाप के लिए दुआया कलमा है, ये हमारे लिए नमूना नहीं है, ये हमारे लिए उसवा नहीं है। कितनी प्यारी बात है कि एक शख्सियत के तमाम पहलू अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने रखे हैं, लेकिन उन पहलुओं में वो एक जुमला जो मेरे और आपके लिए आइडियल नहीं हो सकता, उसवा नहीं हो सकता, उसको मेरे और आपके सामने रखा, इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीही ला अस्तगफिरन्ना लक। इससे पता चलता है कि कोई आदमी काफर फौत हो जाए और उसका कुफर वादे हो, तो उसके कुफर के मरने पर बाद में दुआया कलमा इस तरीके से नहीं चल सकता। हाँ, आपके मामलात हैं, उसमें मामलात में आप वैसे चलते रहे, लेकिन आप उनका जनाजा अदा करें, या इस तरह की चीज़ें हैं, उनसे बचने की कोशिश ही होनी चाहिए। लेकिन शिरक और कुफर का पैमाना अहले इल्म के पास होगा, ये आवामुन नास के पास नहीं है कि जिसे चाहे मुशरिक कह दे, जिसे चाहे काफिर कह दे, जिसे चाहे मुलहद कह दे, जिसे चाहे गुस्ताख रसूल कह दे। ये पैमाना अहले इल्म, और अहले इल्म भी में भी एक फर्द वाहद की बुनियाद पर नहीं होता, वो पूरी टीम ज़्यादा लेगी कि वाक़यातन ये बंदा इस तरह का है कि जिसके शिरक और कुफर और इल्हाद पर कोई फतवा दिया जाए। जैसा कि पीछे इंजीनियर के मुतल्लिक उलमा की जमात का एक पूरा फतवा आया कि ये बतौर रहनुमा इसे नहीं सुनना चाहिए, ये बतौर कादी और इसी तरह बतौर आलिम इसे अपने घरों में नहीं चलाना चाहिए। इसी तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में से, उनके फिक्री पहलुओं में से ये पहलू भी हमारे सामने आता है कि रब्बाना अलैका तवक्कलना, कि इंसान का एतमाद भरोसा वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। आपका एतमाद शख्सियात पर, अपने बिजनेस पर, अपने मादे पर,
अपने इल्म पर, अपने हुनर पर, अपने फन पर। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने इल्म के बलबूते जिंदगी बसर करें, अपने हुनर की बुनियाद पर अपने आप को लेकर चलें, अपने बिजनेस की बुनियाद पे खाम खा अपने आप को बड़ेरा बनाते रहें, बड़ा बनाते रहें। नहीं, रब्बाना अली का तवक्कलना। इससे पता चलता है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्र में यह बुनियादी चीज थी कि वो अपने आप को अपने भी सबूर्द नहीं करते थे, वो अपने आप को और अपने अहले खाना को और अपनी कौड़ी कौम को अल्लाह के सबूर्द करते थे। हम लोग अपने आप को अपने सबूर्द जब करते हैं, अपने अहले खाना को जब अपने वडेरों के सबूर्द करते हैं, फिर कई एक मामलात ऐसे सामने आते हैं जो परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। फरमा रब्बाना अली का तवक्कलना वइलैहि काना बना वइलैहि कल मसीह। कुफार और मुशरिकीन से दीनी ताल्लुक, दीनी एतबार से ला ताल्लुक होना, अहले ईमान से दीनी मोहब्बत रखना, अल्लाह पे तवक्कल करना, ये अहले ईमान के बुनियादी औसाफ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के अहम निकात में से है। फिर उसके बाद अगर दूसरी आयत पे जाया जाए तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिक्री महाज पर जो जंग लड़ी है, वो जंग आम इंसानों की और आम अंबिया की नहीं है, बहुत बड़ी जंग लड़ी है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और ये भी बात याद रखें कि अंबिया कराम के जो प्रिंसिपल उसूल है वो सबके एक है, सबके एक हैं, सबका गोल एक है, सबकी इबादत और तरीका एक है, मकसद एक है। सिर्फ आगे जाके जो उसलूब है, असालीब है, दावत के असालीब बदलते हैं। दावत की जो फिक्र और दावत का जो बुनियादी गोल है वो नहीं बदला करता। दावत के असालीब में क्या है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फरमान वाज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। आपके फज़ाइल के हवाले से मैंने बता दिया था कि आपको अल्लाह सिद्दीक कहे, अल्लाह आपको उम्मत कहे, अल्लाह आपको कानिता कहे, अल्लाह आपको शाकिरा कहे, अल्लाह आपको इब्राहिम अल्लाह दी वफ़ा कहे। ये कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह आपके औसाफ का जिक्र खैर तज़किरा करे। फरमाया काल अभी याबत लिमा ताबुद। यहाँ तसव्वुर इबादत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि ऐ प्यारे अब्बू जान, जो इबादत है और इबादत का जो जामे तसव्वुर है वो जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप सही मानों में आबिद नहीं बन सकते, सही मानों में इबादत गुजार नहीं बन सकते। लिमा ताबुद माला यस्मा वाला युबसिर वाला यूनियन का शैया। तीन चीजें यहां बयान फरमाई है कि जो ला यस्मा सुनने की अहलियत ना रखता हो, वाला युबसिर देखने की बराबर सलाहियत ना रखता हो, वाला युगनियान का शैया आपके काम को करने की मुआमनत और मदद की कुव्वत ताकत ना रखता हो, ऐसा आदमी माबूद नहीं हो सकता। और यहां दूसरी बात यह भी समझ आती है, ला यस्मा वाला युबसिर वाला युगनियान का शैया से यह बात समझ आती है कि माबूद जो होता है उसमें किसी किस्म का कोई नक्स नहीं होता, किसी किस्म का कोई नक्स, यानी जर्रा बराबर भी नक्स अगर साबित हो जाए तो वो माबूद नहीं हो सकता, माबूद बनने की अहलियत सलाहियत में नहीं होता। अब यहां तो यह है कि खुद कई लोगों को साबित करना पड़ता है कि कब्र वाले नहीं सुनते, या हर बंदा हर बात नहीं सुनता, हर बंदा मौजूद जमाने के लोगों की बातें नहीं सुनता। वहां अपने पास बैठे हुए 100 बंदों की 100 बैक वक्त जबानें नहीं समझ सकता। ये वादे है, ये कोई ऐसी छुपी ढकी बात नहीं है, ये अक्ल को भी समझाती है, फितरत को भी समझाती है, इसी तरह मुशाहदे में भी बात है। और हमारे सामने ये सारे तजर्बात भी हैं कि एक बंदा जितना भी बासलाहियत हो वो अपने बंद कमरे में 100 अफराद की मुख्तलिफ जबानें बैक वक्त नहीं सुन सकता। चाहे जाए कि जो अफ्रीका अमेरिका के जंगलों के अंदर और समंदरों के अंदर, आसमानों के अंदर, जमीनों के अंदर, हवाओं के अंदर, परिंदों की, हैवानात की, नबातात की, जमादात की, इंसानों की, जिन्नों की, फरिश्तों की, दीगर मखलूकात की बोलियां सुनने वाला हो। कितना प्यारा तस्वर दिया, फरमा लीमा ताबुद, इबादत उसकी नहीं है जिसके अंदर नक्स है। हमारे यहां तो उन लोगों को भी पूजा जाता है जो लोग खुद अपनी मदद आप नहीं कर सकते,
अपनी मदद आप नहीं कर सकते, मेरी और आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। लीमा ताबुद माला यस्मा वाला युबसिर वाला युगनी अनकशय, ये तीनों लफ्ज बहुत अहम है, बहुत अहम। और कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पे फरमाया, अगर बात सिर्फ सुनने की आए तो ये क़यामत तक आपकी बात नहीं सुन सकते, चाहे कि 1-2 महीने 4 महीने वाली बात तो दूर की बात, क़यामत तक बोलते रहे। और एक तीसरे मुकाम पे फरमाया कि ये लोग तो बेचारे इतना भी नहीं काम कर सकते कि पानी का गिलास हो उसको कहते रहो कि मेरे मुंह में आ जा, मेरे चेहरे की तरफ आ जा। कहने से और सोचने से, देखने से गिलास आपके मुंह में नहीं आ सकता जब तक आप उसे पकड़ के मुंह में डाले ना, वमा हुआ बिबालिगी, वो पहुंच नहीं सकता। कितनी वादे दो टोक आफ है, दलीलें हैं जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी हैं। फरमाया या बात इन्नी कज्जान मिनल इल्म मानम याती का फत्तबीन यादी का सिरातन सविया, कि असल रास्ता इल्म का रास्ता होता है, असल रास्ता दलील का रास्ता होता है, असल रास्ता हदायत का रास्ता होता है, असल रास्ता जहालत का रास्ता नहीं होता, असल रास्ता शख्सियात का नहीं होता, असल रास्ता गुमराही का नहीं होता। या बात आबाती इन्नी कदजान मिनल इल्म, यहाँ इल्म से मुराद इल्म वही है कि मेरे पास इल्म आता है, आपके पास इल्म नहीं। आप सिर्फ टोटकों पे, आप सिर्फ तजर्बात पे, आप वालिदैन की तकलीद पे, आप अबो अजदाद की बातों पे खड़े हैं। असल नजरिया इल्म की बुनियाद पे खड़ा होता है। नजरियात इल्म की बुनियाद पे होते हैं। जब कौमों के नजरियात इल्म की बुनियाद पे हो और इल्म भी इल्म वही वाला हो तो कौमों की हयात जिंदा और जवेद होती है, वो जाविदा जिंदगी बसर करते हैं। जिंदा कौमें होती हैं, उरूज पर होती हैं, जवाल पर नहीं होती। और जिन विचारों का नजरिया इल्म पर नहीं होता, सिर्फ टोटके पर होता है, शुबे पर होता है, बनावटी दलीलों पर होता है, अकली कसवटी पर पूरा नहीं उतरता, तो फिर मसाइल तो पैदा होते हैं। फरमा बालम याती का फत्तबीन यादी का सिरातन सविया। फिर उसके बाद आगे फरमा या बतिलाता बुद्धि शैतान, शैतान और शयातनत की पूजा कभी नहीं होती। हम शैतानों को और शयातनत शैतानी नजरियात सब इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द उसकी बर्बाद है। फरमा याबत इन अखाफ यमस्सक अज़ाबु मिनर रहमान, ये बात कोई जवादी नहीं है। इबादत का मसला कोई इख्तियारी मसला नहीं है। इबादत का मसला कोई इस्तेहबाबी मसला नहीं है। इबादत का मसला वजूबी मसला है। इसमें आपका इख्तियार नहीं है कि जब चाहे कर ले, जब इबादत चाहे ना करे। जिसकी चाहे इबादत कर ले और जिसकी इबादत ना चाहे ना करे। नहीं, अगर गलती पे होगे, अगर जहालत पे होगे, अगर अपने अबो-अजदाद की बेजा दलील पे तकलीफ पे होगे, तो याद रखो फिर इस इबादत का गलत तसव्वुर का तुम्हें अदाब मिलेगा। ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैं अपने तरीके पर, आप अपने तरीके पर, मेरा अपना मजहब, आपका अपना मजहब, मेरा आपका अपना अपना मसलक, ऐसी वैसी बात नहीं। मेरा और आपका मसलक कुरान और सुन्नत होना चाहिए। मेरा और आपका मसलक वो ही होना चाहिए जो अंबिया का मसलक है, अंबिया की दावत है, अंबिया की फिक्र है, अंबिया का नारा है, अंबिया का गोल है, अंबिया का मकसद है, अंबिया का जो उसलूब दावत है वो ही होना चाहिए। बाकी नीचे आगे आते जाएंगे, आपको कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद साथ साथ ये भी फरमाया कि काला रागिबुरंतान आलियती या इब्राहिम लइलम तंत लारजुमन्ना कवाजुनी मलिया, के दाई जो होता है वो अपनी दावत में कभी भी समझौता नहीं करता। उससे चाहे आगे से फूल मिले, आगे से उसे प्रोटोकॉल मिले, चाहे आगे से उसे अच्छे जो ना वो खाने पीने की डिशें मिले, फिर भी दावत चलाता है। और अगर से धमकियां मिले, अगर आगे से उसे कोई तकलीफ दे जुमले मिले और तकलीफ दे बातें सुनने को मिले, तकलीफ दे चीजों का सामना करना पड़े, तो फिर भी दाई अपनी दावत पर समझौता नहीं करता। उस सलूक के ऊपर नजर दौड़ाता है कि इस तरीके से नहीं, अब इस तरीके से दावत देनी है, उसकी ब्रेक नहीं लगती। वो ब्रेकर आते जरूर हैं आपकी स्पीड को चेक करवाने के लिए कि आप कहां खड़े हैं, लेकिन ब्रेकर का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी खराब करके वहां बैठे रहे। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलें तो आगे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बकायदा नक्शा खींचा है, अल्लाह ताला ने भी उसको बयान किया। वह काल इब्राहिम अबी लाजर तत्ताखिदु असनामन आलियतन इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन,
کہ جو غیر اللہ کی عبادت ہے واضح گمراہی ہے، دو ٹوک بات، انی اراکا قومک فی ضلال مبین، اور اس کے ساتھ ساتھ کھلی گمراہی، معبودان باطلہ کی عبادت کی کھلی گمراہی کا کہنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فکر میں سے ہمیں بنیادی نقطہ ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد اللہ والوں کو اس طرح فہم و بصیرت، حکمت و دنائی، علم و حکمت سے روشناس کراتا کہ پوری کائنات اللہ ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کو ہم نے ان کے اوپر کھول کے رکھ دیا، لیکن یہ وہی آنکھ کھل سکتی ہے جس آنکھ کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا حیا اور خوف دل میں ہو، پورا قرآن و سنت کے اوپر ہو، ایک ایک جملہ پوری زندگی میں ایسا ملے کہ جو جملہ وہ ایسا ہو کہ جس میں کمی کوتاہی نہ، کہ ہر جملے میں 100 جملے ایسے کہ جس میں رہنمائی کی ضرورت ہو۔ ایک ایک دن میں ہمیں سینکڑوں پہلو ایسے ہیں جس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے چھوٹے میاں سو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، بڑے لوگ ایسے کہ ان کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بس اوقات ان کی عوام اور ان کے پارٹی کے جو ممبر ہیں ان کو سر جھکانا پڑتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے وہ ہمیں 20 جگہ پہ عزت دینے کے بجائے ذلیل کر رہا ہے۔ ان کے لباس، ان کا وضع قطع، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کا چال چلن، ان کی رہائش اور ان کا سکن اور ان کا یورپی ممالک میں زندگی بسر کرنے کا نمونہ کچھ اور ہے، مشرقی ممالک میں ان کا نمونہ کچھ اور ہے۔ لوگ شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، آپ کا اور میرا خالق معبود وہ ہو سکتا ہے جو فاطر السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور ساتوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر سیدھی بات ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عابد ہے۔ عابد معبود نہیں ہوتا اور مخلوق خالق نہیں ہوتی، ساجد مسجود نہیں ہوتا، تعلیم مطلوب نہیں ہوتا۔ یہ مجھے اور آپ کو سب واضح طور پہ سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ وقت اذ قال لابی و قومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیسی جی بات کہ شرک جو چلتا ہے وہ زیادہ تر تصویر سے چلتا ہے۔ فرمایا یہ ما هذه التماثيل، یہ جو تماثیل اور تصاویر ہیں یہ بھی کبھی پوجنے کے لائق ہوئی ہیں؟ آپ نے، ہم تو بندوں کو پوجنے کے قائل نہیں ہے، آپ نے بندوں کے سایوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا ہے۔ پوجنے کے قائل نہیں ہے، آپ نے بندوں کے ایکس سے زی ایکس کو بھی پوجنا شروع کر دیا ہے۔ ہم تو بندوں کی عبادت کے قائل نہیں ہے، آپ بندوں کی تصویروں کو بھی پوجنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا قال لابی و قومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اور ادھر سے بھی دلیل کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا، جب چیز ہی صحیح نہیں ہے تو دلیل صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ جب حقیقت ہی نہیں ہے تو دلیل میں حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ علم میں حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ تصویر کبھی کسی زمانے میں پوجی نہیں گئی، لیکن انہوں نے جب دلیل دینے کی بات آئی تو وہی بات کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری تقریر وعد ایسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، ایسے ایسے وعد کیے ہیں، ایسے ایسے مذاکرے کیے ہیں، ایسے ایسے محاضرے کیے ہیں، ایسے ایسی تقریریں کی ہیں کہ سامنے اپنا ہو تب بھی، سامنے بیگانہ ہو تب بھی، سامنے کافر ہو تب بھی، سامنے مسلم ہو تب بھی، سامنے جاہل ہو تب بھی، عالم ہو تب بھی ایک دفعہ حیران ضرور ہوا ہے کہ جو بیان کرنے والا سپیکر ہے اس کے بیان میں وزن ہے، اس کے بیان میں دلیل ہے، اس کے دلیل میں پورا ایک بیانیہ نظر آتا ہے۔ بات تو مزے کی تب ہے کہ آپ جب بھی بیان کریں اس کو دلیل پر مبنی بیان لائیں، نہ کہ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں کہاوتیں اور بنی اسرائیل کے واقعات۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ذخیرہ ہے کہ ہمیں رتب و یابس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں پھر اس کے بعد آگے کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، فرمایا کہ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رسول کائنات کو فرمایا کہ میرے ابراہیم کے قصے
मेरे इब्राहिम की कहानी को पढ़ के सुनाओ, इसलिए कि कहानी असल वही है जो असल दलील पर है। फरमाया इद काल लि अबी व कौमी मा ताबुदून कालू नाबुदु असनामन फनदल्लु आकिफीन काल हल यस्माउनकुम तदून। वही बात, इबादत क्यों करते हो उसकी जो न सुनते हैं, न तुम्हारी पुकार को सुनते हैं, न नफा दे सकते हैं, न नुकसान दे सकते हैं। तो साफ फरमान तुम आबाकुम रक्ताबून, अगर तुम इस नजरिए पे हो तो पक्की बात है तुम जहालत के नजरिए पे हो। और साथ अपना भी नजरिया दिया, हाँ मेरे खुदा का तारफ सुनते हो तो मेरे खुदा का तारफ भी सुनो, कैसा प्यारा खुदा है, कैसा प्यारा माबूद बरहक है। फरमाया मैं तुम्हारे तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता हूं और तमाम झूठे खुदाओं से दुश्मनी कमाता हूं, एक खुदा सच्चे खुदा के साथ दोस्ती और यराना लगाने का पूरा नारा लगाता हूं। वो क्या है? फरमाया फइन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बुल आलमीन, मेरा रब वो है, पहली दलील दी बड़ी जबरदस्त, अल्लाह दी खालाकानी। रब वो होता है जो खालिक होता है, जो खालिक जो बताते खुद मखलूक को वो माबूद नहीं हो सकता। अल्लाह दी खालाकानी, ये डार्विन वाले नजरियात जितने भी इर्तिका के नजरियात सारे टूट गए कि मखलूक पैदा करने से पैदा होती है, खुद बनने से नहीं बनती, खुद चलने से नहीं चलती, बनाने वाले से बनती है। दुनिया की हर चीज पैदा करने से पैदा होती है। कोई चीज ये नहीं है कि बजाते खुद मादा, बजाते खुद शऊर, बजाते खुद हरकत, बजाते खुद जिंदगी, बजाते खुद मौत, बजाते खुद हरकत सकरात, ऐसी वैसी बात। अल्लाह दी खालाकानी, रब वो होता है जो खालिक होता है। और उसके बाद दूसरी बहुत प्यारी दलील दी, खालाकानी, अल्लाह दी खालाकानी फाहुवा यादीन, रब वो होता है जो हर जगह रहनुमाई का पूरा आलिम हो, अलीम हो, कादिर हो। ये नहीं है कि मेरी निजी जिंदगी के मामलात, मेरी इज्तिमाई जिंदगी के मामलात, मेरी सेहत के मामलात, मेरी बीमारी के मामलात, मेरी मुश्किल के मामलात, मेरी आफियत के मामलात, मेरी हदायत के मामलात, मेरी जहालत के कोई एक, मैंने एक न्यूज प्रोग्राम में एक साहब कहने लगे कि कोई मसला जो ना वो बुजुर्गों ने सबकी रहनुमाई की है। मैंने कहा हजरत कोई एक जुमला लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं, एक जुमला ऐसा, एक मसला ऐसा लेके आ जाओ कि जिस मसले में आप सवाल उठाएं और हम अल्लाह के फजल और करम से कुरान और सुन्नत से उसकी रहनुमाई ना करें। दुनिया का हमारा ये दावा है, कोई एक मसला ऐसा नहीं है जिस मसले की रहनुमाई कुरान और सुन्नत में भरपूर तरीके से, मुकम्मल तरीके से ना मिलती हो। अल्लाह दी खालाकानी फाहुवा यहदी, वो हदायत देता है, वो इंसानों और जिन्नों को और फरिश्तों को रहनुमाई नहीं करता, दुनिया की हर मखलूक को रहनुमाई करता है। कितनी प्यारी बात है, जिस वक्त कालत नमलतुन या अय्युहन्नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, छोटी सी चींटी ने अपनी चींटियों से कहा कि अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आपको रौंद दे। गोया कि उनकी भी रहनुमाई की है, तुम्हारे लिए असल क्या है और बचाओ क्या है और खिलाना खाना पीना क्या है, नज़्म नस्क क्या है, पूरी रहनुमाई यहां से बात समझने वाला समझ सकता है। फिर साथ ही फरमाया मेरा रब तो वो है युतीमुनी, जो मुझे खिलाता है। युतीमुनी से मुराद क्या है? खाना खिलाना नहीं है, मुराद दुनिया के सारे बिजनेस मैन के बिजनेस उनका जोर टूटता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारा खुदा वो ही राज़िक है, हमारा खुदा ही रज़्ज़ाक है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा बिजनेस हमारा खुदा नहीं, मादा हमारा खुदा नहीं है, हमारा इल्म हुनर फन खुदा नहीं है। यूं वो चाहे तो खिलाएगा, वगरना पास पड़ा हो तो नहीं खाने देता। बस औकात ऐसा भी होता है, आप अपने हाथ से उठाते हो, अपने हाथ से काटते हो, लेकिन पसंद का पकड़ के काटते हो, लेकिन होता यह है कि खा कोई और जाता है, आप अपने हाथ से उठाते। और बस औकात ऐसा भी होता है, अपने हाथ से पकाते हो और अपने हाथ से दस्तरखान लगाते हो, अचानक मेहमान आ जाता है, वो अपने नसीबे का खा जाता है। यूं तीमनी बिजनेस नहीं खिलाता, हुनर नहीं खिलाता, जॉब नहीं खिलाती, असल खिलाने वाला अल्लाह है। वो जब चाहता है, ये नजरियात मैं एक मुस्बत भी चीज ले रहा हूं, साथ मनफी चीज का रद्द भी पूरा उसकी तफहीम भी करा रहा हूं, जो मौजूदा जमाने में एक आलिम के लिए जरूरी है कि हर लफ्ज का वो इस्तेदलाल करे जो मौजूदा जमाने में गलत नजरियात आए हुए हैं। फरमाया अल्लाज़ी युतीमुनी खालाकानी फाहुवा यादीन वल्लज़ी हुवा युतीमुनी
वयस्कीन वहीदा मरीज तूफा वयशफीन, मरीज का जो मर्द होता है और मरीज के मर्द में जो दवाई होती है, एक जुमले में समझ ले मरीज का मर्द अल्लाह के फजल करम से लेवल में आ जाता है कि मरीज को मर्द की हालत में जो दवाई दी जाती है ये तो मरीज की मर्ज से तवज्जो हटाने के लिए होती है। शिफा तो मेरा प्यारा सोना राबी देता है, दवाई कभी शाफी नहीं बनती, पीरों के दम कभी शाफी नहीं बनते, मुआलिज तबीब हकीम की कभी नुस्खे आपके लिए शाफी नहीं बनते। शिफा देने वाला अल्लाह है। जब आपका नजरिया ये बने कि मेरे शिफा देने वाला ये है, फलां शिफा देने वाला डॉक्टर है, तो भाई आपकी बीमारी बसा औकात बिगड़ भी सकती है, अटक लटक भी सकती है, आपको परेशान भी कर सकती है। नजरियात को दुरुस्त करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जुमले नहीं बोले, पूरे फिक्री अहम निकाब भी है। फरमा वल्लदी हुवा युतीमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन वल्लदी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। जिंदगी मौत की कहानी और कश्मकश सिर्फ खालिक के पास है। ना कोई मारने से मरता है, ना कोई जिंदा रखने से जिंदा होता है। अगर कोई मौत का जिंदगी का इख्तियार रखता, दुनिया का कोई डॉक्टर अपनी मौत अपना मरता, दुनिया का कोई हकीम मरना ना चाहता, दुनिया का कोई बादशाह बड़ा तो खुद इस तरह ना मर जाता। अल्लाह के मारने से मरता है और अल्लाह के जिंदा रखने से जिंदा रहता है। किसी को आप आसमान से भी गिरा के नीचे मारना चाहे तो नहीं मरता, और किसी को खंजर मार के मारना चाहे तो नहीं मरता। और बस औकात बंदा अपने ही साए से और अपने ही हरकत से, बस औकात अपनी ही करवट से गिर के इधर उधर होके मर जाता है। ये अल्लाह का कमाल है। जिंदगी मौत का हक और मालिक नफे वो सिर्फ अल्लाह की जात है। फरमा वल्लदी वयुतीमुनी व यस्कीन वल्लदी अतम वल्लदी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लदी अतमा व यगफिर ली खतीअती यौमिद्दीन। ये तमाम आयात इस बात की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं कि हमें फिक्री एतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहां कुर्बानी की सुन्नत को हमने अदा करना है, उससे पहले अपने आप को फिक्री और नजरियाती एतबार से, मनहजी एतबार से, अकीदे के एतबार से इब्राहिम जैसा बना के तो दिखाओ। फिर उसके बाद आप कुर्बानी पेश करोगे, छोटा सा दुम्बा, छोटा सा बकरा, छोटा सा लेला, छोटा सा जो है वो बैल गाय, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करोगे, अल्लाह कुर्बानी को कबूल कर लेगा। अगर आपके नजरियात मैल कुचैल से, शिरक, कुफर, बिदात, खराफात की मैल कुचैल से भरे लदे हुए होंगे, करोड़ों टाक की कुर्बानियां भी कर देंगे तो आपकी कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं है। आपका नजरिया मजबूत नहीं है, आपके अमल की कोई हैसियत नहीं है। आपका नजरिया मजबूत है, आपके छोटे अमल की भी वैल्यू है। अल्लाह दुनिया में भी आपकी वैल्यू, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका पूरा दिल सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्री, नजरियाती, मनहजी जो पहलू हमने बयान किए हैं समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।